We are honored to have Major General Dr. G.D. Bakshi, Sena Medal, Wishes Seva Medal, retired, a war-hardened soldier with a distinguished career as a military officer, known for his pivotal roles in the 1971 Indo-Pak War and the Kargil War. Major General Bakshi has served our nation with valor and distinction. And today, he continues to serve the nation with his scholarly contributions as a historian and an author with notable works including Kargil, Turning the Tide, The Indian Art of War, and Bose, The Indian Samurai, including his latest book, A History of Hinduism, which he will be discussing today. Please welcome Major General Dr. G.D. Bakshi, Sena Medal, Wishes Seva Medal, with a huge round of applause to the podium. Thank you. The Vice Chancellor, Dr. Pratik Sharma, Dr. Gautam, distinguished guests, especially Shri Rajiv Malhotra, who is one of the greatest crusaders for the Hindu faith, who has been defending us when we have been under malicious attack in the West. And actually one of the provocations for this book was, I read a book by Wendy Doniger, trying to lay claim to writing a history of Hinduism. It is mentioned in various academic circles that Hindus should not write about their faith. To be objective, to be clear of bias, it must be outsiders, it must be critics who must write about Hinduism. Only they have the option to write about Hinduism. They have the right to present Hinduism as they like. And as a result, we find that there are Hindu baiters. There are people who are out to, denigrate the oldest faith on the planet, the oldest religion on the planet which emerged from this soil. And therefore, there is a need to counter, there is a need to present the inside the faith perspective. So the subtitle of this book is an inside the faith, inside the tradition perspective. As a practicing Hindu, I must put it across. Let me be very straightforward. Most of us who claim to be Hindus do not know much about our faith. We have learnt it second hand, third hand, mostly from English translations. Mostly from English translations. The simple fact is that if you are asked which are the holy books of Hinduism, which is the holy book of Hinduism, most people will say it is the Gita. When we give evidence in the court, it is said to be on the Gita. The Gita is not the original source book of this faith. Those are the Vedas. That is the level of ignorance. You ask a child from a Hindu family to name the 4 Vedas and he will falter. That is why this book was very much needed. My dear friend Dr. Kaul wanted me to produce a handbook on Hinduism. But when I saw Wendy Doniger's 500-page magnum opus pertaining to be the history of Hinduism, I thought it's about time that some practicing Hindu wrote about his own faith. So that is the... So Hinduism is the oldest religion on this planet. We have over 1 billion followers, 1.2 billion followers to be exact. It is the 3rd most practiced religion in the world after Christianity and Islam. It is a religion with a bit of a difference, I would say. It is not based on the dogma of one book, one prophet, one pope. It has no organized church. Please bear that in mind. It has no organized church, and yet, despite that, despite centuries of invasions, persecutions, this religion has survived
intact. And it has rejuvenated itself time and again. It has a wonderful regenerative, power. The power to renew itself in every age, to reinterpret itself, to retranslate itself. Those of you who are computer buffs would know that Hinduism has an open architecture, like the World Wide Web, WWW, or the Wikipedia. It has no single author. It has multiple authors, multiple editors, and you are free to choose what you want. You are free. The degree of choice that you have is amazing. Simply amazing. There is a very beautiful Sanskrit shloka, a Vedic shloka in fact, which says, Ekam sad vipra bahuda vadanti. That truth is one. That truth is one. But the wise call him by many names. They call him Matrishwan, they call him Yama, they call him Garutman. This is the Vedic stanza. You can call God in terms of the Shakti, the Devi, Indra, Mahadev, etc., various names, but they all mean the same. What Hinduism tells you is that, do you fight with somebody because his name is Pappu and not Kuku? Do we fight with somebody? Why is your name this? So the simple fact is that, when I'm thirsty, I look for a glass of water, right? Now you can call that water Pani, Jal, the Tibetans call it Chu, my friends from the south call it Tanni, my Bengali friends would call it Jol. It is the same. It quenches your thirst, damn it. It's as simple as that. You can call him by any name that you like. Ekam sad vipra bahuda vadanti. Whatever name you choose to call him by, that's between you and him, right? But he is one. He is one. That is the essence of this faith. Now, another very unique feature of this faith, and very few people really have given thought to it. It is based on experiential spirituality. It is based on anubhav, anubhuti, darshan, sakshat darshan. ठीक है? It is based upon a living experience. A lived experience is one that shakes us to the core of our beings. It is overwhelming. In one flash of understanding, we realize what years of study could not have taught us. And incidentally, in neuroscience, they are talking of this form of experiential learning which involves our emotions. It comes in a flash. Let me give you a very simple example. The king called Archimedes, the Greek king called Archimedes and told him, look, I have been given this crown. मेरे को ये ताज ये महल ये ताज दिया है. लेकिन मुझे शक लगता है, वो कहता है सोने का बना है, बट मुझे शक है कि इसमें खोट है, इसमें कॉपर तांबा मिलाया हुआ है. Now, without breaking this crown, you will find out whether इसमें खोट है कि नहीं है, or is it pure gold. Otherwise, off with your head. That was the old style, off with your head. इसको change छोटा कर दो, as the Maoists say, right? So, poor Einstein, he struggles with it, वो सोचता रहता है, what to do, और परेशान हो जाता है. And on one fine day, he is fed up with all that effort, and he gets into a hot water bath, right? And as he gets in, he feels himself lighter. And in a flash, oh my God, specific gravity. He is hit upon the concept of specific gravity, and all the pent-up emotional energies which are being, mobilized for this problem solving are let out in one wild whoop. Eureka! And he goes streaking in the bare buff right through the town.
what you are seeing is that when we are trying to understand a problem, whether it is philosophical, scientific, we mobilize all our energies, which includes emotional energies, to try and understand. And when you truly understand in that one flash of understanding, it is something which is life-changing. Our whole being, our emotions are overwhelmingly involved in such an experience that transforms us forever. It encourages people to validate the truth for themselves. आप खुद अनुभव करिए साहब और जान जाइए. ठीक है? I am not supposed to mug up the Vedic verses. I am not supposed to, say ki, okay, like the Buddha said, and he said it very nicely, and that is the core of all Indic religions, right? He says, "O monks, do not believe because I have said so. Do not believe because it is written in the sacred texts. Do not believe because the wise say so. Experience for yourself and then believe." Experience for yourself, आप अनुभव करिए, आप अनुभूति प्राप्त करिए, आपको दर्शन हो जाएगा. And then it will be changeless, it will change you forever. What years and years and years of mugging and poring over books could not have taught you, one flash of understanding will give it to you. And that is what we look for in the Hindu faith. Now, how do we experience? Okay, this is the truth. Aham Brahmasmi. अब 10 बार बोल लीजिए अहम ब्रह्मस्मि. It is just 2 words. How does it become for you a living realization? Hinduism follows 2 paths to realize that truth. In your own being. आप खुद, it is like you are using your body, your mind as a laboratory. And you are doing psychosomatic experiments, which are repeatable. That is the test of the scientific method. Repeatable experiments. आप ये करिए, आपको ये अनुभव होगा. जब होगा तो बात करेंगे. You see, जब होगा तो बात करेंगे. Right? There is that famous story of a Vedantic sage who went to his guru and he said, "मुझे ज्ञान दीजिए." He said, "Fine, ज्ञान दूंगा. ये गाय पकड़ और ये सब जाके इनको चरा के ला." सालों साल बोला, नहीं तू गाय चराता, तेरे को वहां से ज्ञान आ जाएगा. And one fine day वो बेचारा अकेले रहता था सारा दिन in the open moor, और वहां पे एक वो होती है टिटहरी जैसी, टिटिटी टिटिटी करके बोलती है. तो ये जब सुन रहा था तो उसको लगा, वो पूछ रहा था ये सब क्या है. सडनली उसको वहां से उस चिड़िया की आवाज आई, टिटिटी टिटिटी. उसको लगा वो कह रही है इति ब्रह्म इति ब्रह्म इति ब्रह्म. एंड ही शुक, मतलब जैसे कि बिजली का झटका लग गया होता है, गूज बम्स हो गए होते हैं. उसको वहीं पे अनुभूति हो गई. जो उसके बाकी साथी पोथियां पढ़ पढ़ के, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोय. ठीक है, पढ़ते रहे हम सब, पागल हो गए, लेकिन हमको ज्ञान दर्शन नहीं हुआ. एक फ्लैश ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वन फ्लैश ऑफ इंट्यूशन. एंड उसका भी मेथड है. वो वी डोंट हैव टू वेट ऑन जस्ट पुअर चांस, राइट? So yoga and meditation are the leitmotifs of the Hindu faith, of the Hindu religion. Behind the bewildering multiplicity of things and objects that we see, there is one singularity. Tad ekam, वो एक. जितना भी हमको संसार में, आप इतने हजारों लोग यहाँ पे हैं, अलग अलग आपके नाम, अलग अलग रूप रंग, नाम रूप सब अलग अलग, and yet behind you there is a unity. You are all conscious. Even this inert matter is conscious to a degree because the electrons are whirling, sir, around the protons. ये जो आपको दिख रहा है रॉक सॉलिड की, आप जोर से हाथ मारो तो हाथ टूट जाए, लेकिन अंदर इसके इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स whirling है, एक्टिविटी है. सो कुछ जड़ चेतन नहीं, सबका सब चेतन. ओनली द डिग्री वेरीज. जो मेटल है उसमें सबसे कम विदित है, फिर उसके आगे लकड़ी, पेड़ पौधों में और ज्यादा, इंसेक्ट्स एनिमल्स में और ज्यादा, और सबसे ज्यादा आप में ऑन दिस प्लैनेट, राइट? सबका सब चैतन्य है,
सर्वै कैवल्य विदम ब्रह्म, राइट। ये मैं आपको बताना चाहता था कि जब हम अपने अंदर झांकते हैं, आजकल यू नो व्हाट इज सपोज टू बी द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स, ऑल ऑफ यू आर इंजीनियर्स हियर. What is the hard problem of physics? It's not how far the galaxy is. It is what is consciousness. How do I see the red in the red flower? Consciousness kya hai? That is the hard problem in physics, at the frontier of physics today, right? And this is what our ancients were doing. And his technique was very simple. Everything is conscious. I am conscious. So when I want to know what consciousness is, let me look within. मैं अंदर अपने झांकूं, और जब मैं अंदर गहरा देखूंगा तो मुझे लगेगा कि मेरे में कॉन्शियस क्या है, मेरे में मैं क्या है, कौन है. What is the I in me? क्या है मेरे में लिविंग एंटिटी. अंधेरा दिखता है जब आंखें बंद करते हैं, पर धीरे धीरे जब आप अंदर, when you start, आपकी बाहिर्मुख दृष्टि अंतर्मुख होने लगती है. When your extrovert nature starts becoming introvert, then you realize the truth within yourself. You realize that Atman within yourself. And one of the greatest intellectual leaps of the Hindu religion is the consciousness within me is the same as the consciousness everywhere. The relationship between the cosmic consciousness and the universal consciousness is hologramic. Now you all know what a hologram is. You know, when I was very small, I took my children to the DRDO laboratory. I wanted to show them what holograms are. I was very intrigued myself. So we went to this thing, and they showed us, you know, the hologram was from the Khajuraho statues, a girl writing a letter to her lover. So it's a very beautifully sculpted statue, and they had made a hologram. So he just showed us that hologram. He passed the laser light through it, and then he turned it slightly. We saw right shoulder. He turned it this way. We saw the left shoulder. Then we saw the back. Then we saw the front. 360-degree coverage. A 2D photograph doesn't have 360-degree coverage from all around, right? Then he cut the hologram into half. It produced the whole image. He cut that into half. It still gave the whole image. Theoretically, every molecule of a hologram contains the whole image. Please ponder over this. So what is the relationship between Brahman and Atman, or Atman and Brahman? Every particle of Brahman contains the whole image. Every single unit of consciousness, you, I, me, everyone, we contain that whole image. The relationship between Atman and Brahman is hologramic. Now, there is one peculiar thing about the Hindu religion. It is said to be a religion of the forest. The Abrahamic faiths have all come from the desert, from Arabia, Mesopotamia, Iraq. That is the cradle of all the Abrahamic religions. They are the religions of the desert. We are, as opposed to that, the religion of the forest. Now, there are some very interesting facets about that religion of the forest. Our ancient rishis, they left the towns and cities, and they deliberately went to the forest. They built straw-roofed huts, and they stayed there and meditated for years. And in the organic silence of the forest is teeming with life. All types of plants, shrubs, trees, grasses, insects, animals, it is teeming with life. And yet, behind that multiplicity of life, they sensed an organic unity. विविधता में उनको एकत्व दिखा. Behind the multifarious beings and objects, they found a central thread of unity. Like माला हमारी बहनें बच्चियां पहनती हैं. There are so many thousands or hundreds of beads, yet they are all strung together on that one thread, tantu tatam, that one thread of unity which runs through the cosmos. However different everything may seem, an elephant from an ant, and yet there is that thread of consciousness that links the two. An ant to an elephant, right?
So, you know, when they went into that silence, they sent that unity of consciousness. And then they said, यही तो मेरे अंदर है, और जो मेरे में है वो सब जगह है. That is the core realization of the Hindu religion. Now, when you go to a forest is full of trees, right? And in the tree, you know, the trees have roots which suck up the water. It goes up to the plants, and photosynthesis happens there. The plants transform the light and water to life. ठीक है साहब, वो जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं on the right side, the miracle of photosynthesis. जब जो पानी के अंदर सूर्य की रोशनी पड़ती है, it splits the water into hydrogen and oxygen. वो पेड़ ऑक्सीजन देते हैं जो आप और मैं सांस लेके जीते हैं. ठीक है साहब, हम जिंदा हैं बिकॉज वो पेड़ हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं. और जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से कंबाइन होके कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, जिससे आपके सब प्राणियों के जो शरीर है वो कार्बोहाइड्रेट से बने हैं. मतलब लाइफ एंड वाटर प्रोड्यूस लाइफ, प्रोड्यूस consciousness, or they appear to give rise to consciousness, right? सब वेदों में जो भी माइथोलॉजी है, आप अगर वेदों को ध्यान से पढ़ें तो उसमें है the struggle to win the light. ज्योति को वो गो कहते थे, you know, rays of life, rays of cosmic rays of life, उसको बोलते थे गो. तो कई मंत्र हैं जो कहते हैं कि मुझे गौएं दो, मुझे घोड़े दो, मुझे हाथी दो, यू नो, लोग समझते थे ये. बट ये एक एनकोडिंग डिवाइस है हमारे वेदों में. इसको बोलते हैं श्लेष. श्लेष मतलब एक वर्ड के दो मतलब, दो क्या कई मतलब, हजारों मतलब निकल आते हैं. मैं आपसे पूछता हूं, जल, कोई बताइए जल का मतलब क्या है? ऊंचा, पानी. मैं जल गया, यानी एग्जैक्ट ऑपोजिट मतलब उसी रूट जड़ के अंदर है. जल मतलब पानी, तन्नी, वाटर. जल मतलब मैं जल गया साहब, आग लग गई. जल और अग्नि, जल के बन जा दावा नल. यू नो, दिस वाज एन एनकोडिंग डिवाइस. जो आदमी उसको जल ट्रांसलेट करता है, वाटर, उसके लिए मतलब अलग है. और जो आदमी उसको आग ट्रांसलेट करता है उसके लिए मतलब बिल्कुल ऑपोजिट होगा. ये वैदिक श्लोकास के अंदर एक एनकोडिंग डिवाइस है. इसका मतलब जिसको वो अनुभव हुआ था वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसको वो ट्रांसलेट करेगा. देयर आर मेनी लेवल्स ऑफ मीनिंग. जैसे आप पानी में पत्थर फेंके, फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, देयर आर लेवल्स ऑफ मीनिंग उसी मंत्र के अंदर. और कितना आप समझ सकते हैं डिपेंड्स ऑन आपका अनुभव कहां तक है. हाउ फार हैव यू गॉन विद इन, राइट? सो द कोर माइथोलॉजी ऑफ द वेदास में आपको मिलेंगे ज्योति स्वाहा. ज्योति, लाइट, इज कॉन्शियसनेस. वाटर इज अ सिंबल ऑफ कॉन्शियसनेस. आपह, ये वैदिक मंत्रों में बहुत बड़ी चीज है. बाय द वे, हम अपने आप को हिंदू तो कहते हैं, ऑल ऑफ अस हु आर हिंदूज, बट डू यू नो दैट किसी भी भारतीय भाषा में हिंदू नाम का कोई शब्द नहीं. आर यू अवेयर ऑफ दैट? आपको पता था? ये नाम हमने अपने को नहीं दिया. ये जो पर्शियंस आए वो स का साहब ह बोलते हैं. हम बोलते हैं सोमा तो वो बोलते हैं होमा. ठीक है, हम बोलते थे सिंधु तो उसका उन्होंने क्या निकाला? हिंदू. हम कहते थे कि जो वेदों का एरिया है वो है सप्त सिंधु. ठीक है साहब, तो उसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया हप्त हिंदू. और बोले कि जो सिंधु नदी के बैंक्स पे रहते हैं वो सब हिंदू हैं, क्योंकि वह उनकी तरफ से वो उसका नाम हिंदू था, तो वो उससे वो नाम आ गया. और ये नाम हमारा नहीं. We have not given this name for ourselves. It has now become a term of self-designation. तो हिंदुओं का क्या, धर्म का नाम क्या है साहब बताइए? हाँ, good. We have a very enlightened audience. है? हमारा टर्म है साहब सनातन धर्म. सनातन का मतलब इटर्नल, हमेशा से चला आ रहा है.
और धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है साहब, धर्म का मतलब राइटियसनेस, द वे, द रिथ, द लॉ, द ट्रूथ, ये है सनातन धर्म का मतलब, ये हमारा दिया हुआ नाम है। अब साहब बताइए कि जो हमारा सनातन धर्म कहां पे उदय हुआ? ये हुआ साहब इंदस सरस्वती सभ्यता में। हमारी एनसीईआरटी की किताबें अभी हाल में उन्होंने इंक्लूड किया है इंदस सिविलाइजेशन से, अब वो कह रहे हैं इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन, जो हमारे वेदों में हजारों हजारों साल पहले लिखा हुआ था। व्हाट इज द सेक्रेड ज्योग्राफी ऑफ हिंदुइज्म? आप देखिए, ये आपके सामने है। ये जो स्काई ब्लू में जो नदी दिखाई दे रही है, ये है सरस्वती, और जो उसके ऊपर डीप ब्लू में है बेटा, वो है इंदस, सिंधु। प्रॉब्लम ये थी कि जब तक पर्शियंस आए, अरब्स आए, ग्रीक्स आए, सरस्वती नदी 1900 BCE में गायब हो, सूख गई थी, सूख चुकी थी। राजस्थान के एरिया में कभी घने जंगल होते थे, ठीक है साहब, और वहां पे गैंडे और हाथी और टाइगर्स होते थे, जो कि सिर्फ रेन फॉरेस्ट में होते हैं। वो राजस्थान में टाइगर्स होते थे। आप समझ रहे हैं, इतना फर्क, सूख गया राजस्थान पूरा। तो उन्होंने देखा केवल सिंधु को और बोला हाँ साहब, ये देश सिंधु नदी से के ऊपर बेस्ड है, तो इसके रहने वाले सिंधु, जब वो सा का हा बोला तो हिंदू हो गए साहब, ठीक है। थी ये आपका जो बेसिकली योर क्रेडल रिवर इज द सरस्वती। व्हाई इज इट द क्रेडल रिवर? आप जरा ये डॉट्स देखिए, ईच डॉट represents a settlement, a village, a town, कोई गांव को रिप्रेजेंट करता है। 80% of these are along the Saraswati। और आप देखें सिंधु की तरफ, इंदस की तरफ, only outliers 20-30% है। The main cradle river was not the Indus, it is the Saraswati. That is the basic fact we must understand about ourselves, right? And the Saraswati river was 4,600 kilometers long, 6 to 8 kilometers wide, and it flowed from the Himalayas, from Mansarovar Lake in Tibet, down to the sea in the Ran of Kutch, bigger than the Brahmaputra. That is the source of this river, and that is why those who lived on its banks were called Saraswats. And one of the main, इसको मध्य देश बोलते थे, मध्य देश. Very surprisingly, the Chinese core civilization is called the Middle Kingdom. Look at the similarity, Middle Kingdom. ये इसको मध्य देश बोलते थे, और मध्य देश का राजा था भारत, जिसने पूरे इलाके पे कब्जा किया था, इसलिए उसका नाम भारत वर्ष हुआ। असली नाम हमारे देश का ना इंडिया, ना हिंदुस्तान, ना कुछ भी आप कह दे, ये था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो वहां पे जो इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन में खंडहर हमको मिले हैं, उनकी रेडियो कार्बन डेटिंग की गई है, एंड दैट हैज बीन टू बिरहाना. The upper layers are 8 to 9,000 years old, and the deeper layers are 9,500 years old. 9,500 साल पुराना. और ये मतलब मेरी कोई अंदाज नहीं है साहब. This is empirical radiocarbon dating. Empirical radiocarbon dating. ठीक है साहब. और इस सिंधु नदी में हमको सभ्यता में, सिंधु सरस्वती सभ्यता में हमको जो हिंदुइज्म के दो मेन चीजें हैं वो दिखाई देते हैं. वो ऊपर देखिए बीच में पशुपतिनाथ ध्यान मुद्रा में शिव, शिवलिंग मिले हैं वहां. जस्ट गो टू द नेशनल म्यूजियम हियर इन दिल्ली और आपको बड़े बड़े शिवलिंग वहां से मिलेंगे. दैट मीन्स 9,500 ईयर्स से लेके अब तक ये आ रही है. छोटी छोटी प्लास्टिक की वो जो इसकी टेराकोटा की डॉल्स मिली हैं इन द पोस्चर्स ऑफ योगा. योगा भी साहब आपका 9,000 साल के पहले पुराना है. ठीक. अभी देन व्हाट आई विल डू इज, आप अभी टेक ओवर कर ले, देन आई विल कम बैक. अच्छा ठीक. ऑलराइट.
तो ये मैं बता रहा था कि आपको तब से लेके अब तक कंटिन्यूटी है, बहुत जबरदस्त कंटिन्यूटी। आप वो जो एक महिला की स्टैचू बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें, उसकी मांग में सिंदूर है, उसके माथे पे बिंदी का निशान है, और जो गहने डाले हैं वो पीले हैं, वो सोने के गहने दर्शा रहे हैं। तब से लेके अब तक हमारी औरतें अभी भी बिंदी लगाती हैं, अभी भी सिंदूर माथे में लगाती हैं। सोने के गहने का शौक तब था, आज भी है, तब था, आज भी है। अच्छा, ठीक। मैं अब यहाँ पे, क्योंकि राजीव मल्होत्रा जी को जाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए रुकूंगा, और मैं राजीव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ से टेक ऑन कर लें, और जब वो खत्म करते हैं मैं फिर इसको आके पूरा कर दूंगा। थैंक यू। Jai Hind, and thank you, General Bakshi, for not only writing a great book, but also for making such a nice presentation about our making a presentation about our whole history. आप बोलेंगे तो हम नहीं बोल सकते. If you want me to speak, then you keep quiet. That is part of the NCC discipline, I'm sure. So I want to thank my friend General Bakshi for years of friendship and collaboration, for writing so many great books, including this one, and also a very important talk that he's giving. Unfortunately, I'm leaving. This is my final event, and then I have to fly off, and so I have a time limit, and therefore I apologize for this. But I think I'll make a few remarks, not too many, and then you can hear General Bakshi speaking again. The history of any civilization should also be a way to, should be a opportunity to introspect about who are we, what are our strengths, what are our weaknesses, how do we do course correction. So you see, I think I'll wait, let them clear, those who want to clear. ये बेटा आप लोग प्लीज बैठ जाइए। अभी राजीव जी को बड़े पेशेंस से, ध्यान से सुनिए, लाइक गुड एनसीसी कैडेट्स। उसके बाद मैं अपना खत्म करूंगा, तो जो जाएंगे वो मिस कर जाएंगे फिर। So as I was saying, what you need to do with history is to use it to introspect and ask yourself questions. For example, the great rishis are the originators of our civilization, as General Bakshi is pointing out. What is so unique about it? What is so distinct about it? The question is, what happened today? Why is it that we, at one time we were the producers of technology and knowledge and science in the whole world. Universities like Nalanda were where all the elite students, best students from all over came to study. Like today, they want to go to Harvard. They used to come to Nalanda. It was like the Ivy League of that time. People from Japan and Cambodia, Mongolia, China, all these places, full of their history, they used to come here. So now, why aren't we able to produce knowledge and the patents and the technology which everybody in the world would want? Why is it that instead of being producers and exporters of know-how, we are now the importers? We are very proud that we have the largest number of WhatsApp users and things like that.
So we are very proud consumers of somebody else's technology, somebody else's know-how. And those of you who are doing engineering, when you go and get a job, usually you're using American platforms, American operating system, whether it is search engine. So the real question to ask is, what happened to the rishis? Why aren't we able to produce this knowledge for ourselves? Why is it that the Americans become like the rishis, that we are the shishyas? We're saying we are Vishwa Guru, but we are Vishwa Chelas, if you really think about it. What happened? We have to ask this question as we study our history. So I will tell you that the importance of this book that we are launching today will be not sort of just memorizing what happened, which is very important, but also looking for clues. At what point in our history and for what reason did we stop being innovators? Did we stop being innovators? How did we become why aren't we innovators today? So this is the important reason for writing this book, to make you think like this. Also, we have the highest IQ in the world, the highest IQ of our rishis, which is why we produce this civilization. So civilization at a physical level is important, Hindu civilization. But the root of how it came about, how did we discover, how did the rishis discover, why somebody else didn't discover? So this is what you have to find out. Today, the IQ of Indians is not in the top 25 in the world. You can read up statistics. Why is that so? And what are we doing to raise the IQ? To raise this is what General Bakshi said, you need that meditation practice. You need the whole inner science, the Adhyatma Vidya. You need that, which is what our scriptures, our Shastras teach us, so that you can practice this just like you externally practice NCC, discipline, things like that. You need to also practice the inner engineering, the inner science, the Adhyatma Vidya, to reach the state of enlightenment, higher consciousness, from where we can have the revival of the rishis and we can be the leaders of the world in terms of production of innovation and new knowledge. Then only we can call ourselves Vishwa Guru, but not until then. So this is what why the history of Hinduism is important. So you can learn how the rishis operated, how those at different stages in Mahabharata, how they're debating. But today, how many intellectual Kshatriyas do we have? How many intellectual Kshatriyas do we have, as the Mahabharata wants us to be? So we are kind of followers, we are afraid, we are compromising, we don't even understand. So somewhere along the way, we lost our uniqueness that made this the great civilization that, as General Bakshi is talking about. So I thought that is an important point. Another thing that we have to look at is, as we understand the history of Hinduism, it is not only history of what we call Hinduism, but many offshoots. So for example, Buddhism is also part of Hinduism's history because it is a Hindu production. Its output, it is an I call Buddhism the export variety of Hinduism. The export variety of Hinduism. You see, Hinduism is very much culture, Indian geography. You cannot transplant it into Japan and China, Mongolia and various places, and USA. But if you take the meditation tattva and the philosophical essence and you remove the cultural context, you make it more exportable, and then you can send it to any other country, they can plant it into their culture. So Buddhism is more easily transplanted into many different kinds of cultures, but philosophically it is of Hindu origin. So I would say a good study, a good part of the history of Hinduism has to be the export variety, which they call Buddhism. Buddha didn't call it ism, Buddhism, anything like that. He was a Kshatriya, and he was trained by the Brahmins, and he was studying meditation. All the meditation systems he used were trained, Vedic systems he used, and then he got his enlightenment, and he had a different way of explaining it. That is all it is. So it was one of the streams of thought that came out of our heritage, and we should claim it. Similarly, Sikhism. So we've created many of the great faiths of the world that are alive and thriving today.
as the mother religion, the mother faith, the mother dharma, Sanatana Dharma, created all these, we have to claim that also. Another thing we have to claim as part of our history is that before the spread of Christianity, which actually killed a lot of native faiths, before the spread of Christianity, in the Americas, the native traditions, in the African countries, the native traditions, and in Europe, the traditions that became known as pagan, the Wicca tradition, the traditions of nature, sacredness of mountains and rivers, and female priestesses and female goddesses being worshipped, all of that was abolished and banned by the spread of Christianity. But those pre-Christian faith religions, which were native religions, native faiths, were basically very, very much aligned with the Vedas. And when I went to Turkey many years ago, in Turkey, the eastern side of Turkey is the Anatolia Peninsula. When you go there, you go to the museums, you will see that they have old archaeological sites, old archaeological figurines. And when I ask the people, tell me what it means, why this person is sitting on a lotus, what does it mean? The local historian doesn't know. So I told him what it means. I told him the significance of the lotus. So like this, you see so much motif, so many motifs representing our history sitting in their land. Now it is sad that our people have not gone and understood it and written about it and taught them also, this is your own history, we will tell you what about your own history. We have not done that. So our history is not just limited to our geography and not limited to the boundaries of what we call Hinduism or Sanatana Dharma. The history of Hinduism is much bigger. It is the mother of so many things that have happened. When you look at things like botany, things like linguistics, things like astronomy, mathematics, they became secularized when they were turned into Western ideas. But when they were originating from our rishis, they were intertwined and inseparable from our Vedic cosmology. These are not independent of our Vedic cosmology. Like the famous Ramanuja mathematician, you have a picture of him I saw the picture in the hallway. He was this brilliant guy about 100 years ago, and British mathematicians were surprised that he could come up with all these theorems. It's taken 100 years for people to even understand all these. And he was considered one of the greatest mathematicians of the century. When they would say, how did you prove this? He said, the goddess told me. Devi told me. So he was inspired by our tradition. But when you look at those number theory equations, an average person would not know what it has to do with Hinduism. But the genius said that this is all because of my faith, because of my meditation, because he used to do a lot of meditation on the Devi, and he was inspired. I wish somebody there had taken him seriously and recorded his understanding of the Devi and how he got these ideas. People did not record that because they thought it's all humbug. They just wanted the result of what he's proving, what he's showing, because they could use that. But they did not bother to go into the philosophy of how he got it, because it would not fit their needs. It would not serve their purpose. So this is a tragedy that we have lost so much that we don't even consider it within the scope of Hinduism. We don't even consider it. This, I tell you, means that Bakshi-ji's book is the first volume of what needs to be a whole series of volumes that maybe you can help and many of us can join, because there are all these different topics. Each of them could be a PhD topic. So with that, I'll close because I have a time limitation. I really thank you for listening, and congratulations and my best wishes to General Bakshi. We are deeply grateful for your contributions and for the time you have taken to be with us. Thank you so much, sir.
We request Major General G.D. Bakshi, SMVSM, to continue addressing his speech. Please, sir. Yeah, thank you. So laptop battery is on. I'm just changing your laptop. Okay. Good. No, sir. Just give me a moment. जी सर हो जाएगा। So which one? Yeah. You only? Yeah. Go to the exact slide. चल Which one, sir? Which one slide? आगे. आगे चलो आगे यहाँ I think we were here. yeah. The yoga poses. Yeah. Oh, as a present के लिए function F5. थैंक यू It's presenting or not? हाँ हो गया सर. Change. आगे जाना ओके होगा. जी सर. This one, sir. या थैंक यू Good evening, sir. थैंक यू ऑलराइट बच्चों, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि वन ऑफ द प्राइम फीचर्स ऑफ हिंदुइज्म इज इज एंटीक्विटी, कितना पुराना है। और कितना पुराना है मैंने बताया, रेडियो कार्बन डेटिंग साइंटिफिक आपको बताती है 9,500 साल, तभी सनातन कहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज है कंटिन्यूटी, अगर माथे पे बिंदी 9,500 साल पहले लगती थी, आज भी चली आ रही वो प्रथा, ठीक है साहब। मांग में सिंदूर तब था, आज भी है। चूड़ियां, ये देखिए वो जो ब्रॉन्ज की डांसिंग डॉल है, उसके यहां से लेके यहां तक चूड़ियां हैं। और राजस्थान में और गुजरात में आज भी हमारी औरतें यहां से लेके यहां तक चूड़ियां डालती। देयर इज सो मच विच इज कंटिन्यूअस। कुछ है हम में कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और क्यों, अभी देखिए राजीव मल्होत्रा जी, आप यू आर लकी, आप उनको सुन पाए हैं। वो अमेरिका में बहुत भारी स्कॉलर माने जाते हैं और बड़े फेमस हैं। और वहाँ पे जो बड़ी बड़ी हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, जहाँ पे लोग हमको हिंदू धर्म के बारे में सिखा के गलत प्रचार कर रहे थे, उनके मुंह उन्होंने बंद किए हैं। अनफॉर्चुनेटली आज टाइम नहीं था तो वो ज़्यादा नहीं कह पाए, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग उनको देख पाए। देखिए वो बात कर रहे थे ऋषियों की। हमारा आईक्यू इतना ऊंचा था क्योंकि हमारे ऋषि मुनि थे। और ये हैं वो सप्त ऋषि, अत्रि, विश्वामित्र, कश्यप, गौतम, हाँ, और आपका भरद्वाज, अत्रि और हमारे जो अंगिरस, ये सप्त ऋषि माने जाते हैं। इन्होंने उस शांत वातावरण में ध्यान किया, उस शांत, बेटा थोड़ा चुप हो जाइए, आई गेट डिस्टर्ब, प्लीज कीप क्वाइट। ऑलराइट, तो मैं कह रहा था कि हमारे ये ऋषियों ने उस घने जंगलों में उन्होंने ध्यान किया। आप सुबह शाम जाइए, मेरे खुद गुरु महाराज वो इंजीनियर थे आप जैसे, वो एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में वो एक मैनेजर थे। 27 साल की उम्र पे वो सब छोड़ छाड़ के वो चले गए महाराष्ट्र में। एक घना जंगल है, अजंता, एलोरा और पित्तलखोरा की गुफाओं के बीच। और आज भी अभी आप जाइए कभी छुट्टी में, आप उस तरफ ध्यान करते हैं, वो तपोवन है। वहां पे भास्कर आचार्य का आश्रम हुआ करता था, ठीक है। और उन्होंने वहां पे जो है भास्कर आचार्य के उस आश्रम में उन्होंने कोई 15 साल ध्यान किया। इतना शांत वो है कि सुबह और शाम साहब आपका मुंह नहीं खुल सकता, आप बोल नहीं सकते। हम लोगों को खूब बोलने की आदत है, लेकिन जब हम अंदर जाएं, और मैं आपको एक श्लोक दिखाऊंगा कबीर जी का दोहा, ठीक है, तब जाके वो अनुभूति, वो अनुभव हमको अंदर होते हैं। और जंगल में तो खास तरह ऐसी शांति है,
ऐसी असीम शांति कि वहां पे ये जो ट्रूथ्स थे ये ऑटोमेटिकली विदित हो गए। ये हैं हमारे ऋषि, जो हमारे दिग्गज, हमारी पूर्वज, जो हमारी इस जो श्रेष्ठता हिंदू धर्म में है, हिंदू वे ऑफ लाइफ में है, वो हम इनसे प्राप्त कर चुके हैं। तो वेदास बेटा हमारे 4 हैं, ऋग, साम, यजुर और अथर्व, और इनको श्रुति कहा जाता है। जो हमें सुनाई दिया ऑडिशन, उन्होंने कहा कि साहब हमने वेद नहीं लिखे, ये अपौरुषेय हैं, इदन्नमम, ये मेरा नहीं, ये तो मेरे को बना बनाया आया है, मैंने केवल रिकॉर्डिंग का काम किया है और सुनने और याद करने का काम किया। और फिर कोई 2-3 हजार साल उनके ऋषियों के बाद उनके बच्चों ने, ऋषि फैमिलीज थी, अत्रि फैमिली, भरद्वाज फैमिली, उन्होंने कंठस्थ किया, वेदों के सारे श्लोक याद किए, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया। जो एक वेद जानते थे उनको वेदी, 2 वेद द्वेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, 4 वेद जिसने पूरे याद करके रखे थे और ट्रांसमिट किए, जब जिसके पहले राइटिंग बनी, और फिर वेद व्यास ने इनको राइटिंग में कमिट किया था, और उन्होंने भी बाद में महाभारत लिखी थी। जैसे मैंने बताया, वेद में हर शब्द के कई अलग अलग अर्थ हैं। आप उसको पहली नजर में पढ़ें तो वो पूजा है कि हमें गौएं दो, हमें घोड़े दो, वो उस टाइप की उस समय की वेल्थ हुआ करती थी। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो जो गौ का दूसरा मतलब है रे ऑफ कॉस्मिक लाइट। अब देखिए साहब, वही मंत्र का मतलब क्या बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है साहब। और घोड़ों का मतलब प्राण शक्ति, घोड़ा इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, प्राण शक्ति का जो वो है, अगर आप उसकी आप अर्चना पूजा करते हैं तो वो मतलब है। तो इसका कई जो गूढ़ थे मंत्र, उनका मतलब अभी भी आपको जो उस पे निध्याध्यासन करना होता है, ध्यान करना होता है। और इसलिए वो समझने के लिए वो गुरु जो थे, वो ऋषि थे, वो जंगलों में गए और ऋषि और शिष्य साथ बैठ के उपनिषद, जो कि मैं अपने गुरु के सामने बैठकर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे उपनिषद कहते हैं। 108 उपनिषद हैं, जिनमें से 10 जो है मुख्य उपनिषद हैं। आप वो पढ़ लें, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अरण्यक है, मतलब इतनी सेक्रेड बुक्स कि जो केवल जंगल में जाके उसकी सघन शांति में आपको पढ़नी चाहिए, राइट। और मैं इसमें 2 चैप्टर हैं मेरी इस पुस्तक में वेदों के ऊपर, लेकिन मैं जो आदि शंकराचार्य ने वेदों का सार 4 महावाक्यों में निकाला। ये जो 4 महावाक्य हैं जो यहाँ लिखे हैं, ठीक है, ये आई थिंक कुछ सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। पहला है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा क्या है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस ब्रह्म है। ये जो कॉन्शियसनेस आप में, मुझ में, हर प्राणी में, हर चींटी में, हर कीड़े, हर पेड़, हर पत्ते, हर पौधे में जो कॉन्शियसनेस है वो ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म। दूसरा महावाक्य है अयम आत्म ब्रह्म। ये जो मेरे में आत्मा है, जो उस छोटी चींटी में आत्मा है, वो सब को समेटती है। वो और ब्रह्म एक ही है। इट इज होलोग्रामिक एक्सपीरियंस, ठीक है। अहम ब्रह्मस्मि। जब मैं ध्यान करता हूं और मैं ध्यान में जब मैं टच करता हूं तो एकदम से मेरे को विदित होता है, अनुभव होता है कि अब मेरी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा रेखा सब धुल गई, घुल गई, और मेरा विस्तार जो मैं मेरे अंदर है उसका अद्भुत विस्तार हो गया है दुनिया के, कॉस्मोस के कोने कोने तक। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, कोई फर्क नहीं है मेरे में और उसमें, ठीक है। और वो सब जगह है, ठीक है। और फिर जो आखिरी मंत्र है तत्त्वम असि, महावाक्य जो है वेदों का, वो तुम हो, वो तुम हो। ये है आपका महावाक्य 4 जो आदि शंकराचार्य महाराज ने चुने थे हमारे वेदों से। आपने ये 4 पढ़ लिए, आपको पूरा वेदों का सार पता चल गया। लेकिन हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं कि केवल पढ़ लेना, जान लेना काफी नहीं,
अब जाइए, अब आंख बंद करिए, अब ध्यान करिए वो कॉन्शियसनेस मेरे में कहां है, उस अंधेरे में क्या है जो जीवित है। अंधकार जब मैं बंद करता हूं, क्या है जो जीवित है। और जिस दिन आपको वो अंदर का सूर्य जग जाएगा तो आप गायत्री मंत्र समझ जाएंगे। तत्सवितुर वरेण्यम, वो सूर्य नहीं बोला, तत्सवितुर, वो आत्मा का सूर्य जब मेरे में उदय होगा, हे भगवान कैसी रोशनी प्रखर मेरे अंदर सूर्य है, जो अंधकार में मेरे को दिखता नहीं लेकिन मेरे अंदर सूर्य है। और जिस दिन तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, प्रचोदयात्, उसका उदय होगा और मेरी बुद्धि को वो तीव्र करेगा, ठीक है, और उससे सबका भला होगा। तो क्विक, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, वेद, उनके बाद उपनिषद, फिर अरण्यक, उसके बाद हमारा एपिक्स का काल आया, रामायण और महाभारत का काल आया। वो भी देखिए, ये जो सारे जो हमारी हैं ये रिदमिक स्पीच में मिले। जब आप में वो ब्रह्म चेतना जागृत होती है तो जो स्पीच आपकी आती है ना, जो उससे ऑटोमेटिक वो रिदमिक पोएट्री में, मीटर में, छंद में होती है। तभी है ये कोई भी वेद वाक्य आप ले लें, इट इज इन दैट मीटर, इट इज इन पोएट्री, और इट इज इन राइम में भी। इतना जरूरी नहीं है कि राइम हो, लेकिन मीटर और रिदम उसके अंदर है। और आप देखेंगे बाद के कालों में जब हमने संस्कृत का इस्तेमाल छोड़ दिया तो उस काल की भाषा में वही रिदमिक स्पीच आई है, और मैं आपको उसका एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। एपिक्स के बाद रामायण और महाभारत दो एपिक हैं, और इनको इतिहास कहा जाता है। ये हिस्ट्री है हमारी। और जितने रिसर्च हुए हैं, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च हुए हैं, पेंटेड ग्रेव वेयर, पॉटरी वगैरह, उन्होंने देखा है कि साहब वहां ये उस जगह पे मौजूद हैं। 5 गांव मांगे थे पांडवों ने, श्री कृष्ण ने पांडवों की तौर से 5 गांव माने थे। पानी प्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, बागप्रस्थ, बागपट, इंद्रप्रस्थ, ये अभी भी ये 5 गांव है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इतिहास है। तंत्र, तंत्र हमारे 3 किस्म के हैं बेटा, शैव तंत्र, वैष्णव तंत्र और शक्ति तंत्र। और ये 64 हैं नंबर में, ये जो हमारे तंत्रस हैं। और इनमें जो कुंडलिनी शक्ति की जागरण क्रिया का ज्ञान है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। और उसके बाद आता है पौराणिक युग, पौराणिक काल, जबकि जो आम प्रचलित हिंदू धर्म जो आप आज देखते हैं वो पौराणिक काल में आया। तब हमने जंगल छोड़ के हम शहरों में आ गए। लिसन टू दिस, हम जंगल छोड़ के जब से शहरों में आए, हमने अपने मंदिर कोलाहल के बीच में बनाए, शोर शराबे चिल्लकाओं के बीच में जब मंदिर बनने शुरू हुए, लोगों ने खूब धन चढ़ाया और हमारे मंदिर तो मतलब पूरी दुनिया में विख्यात हो गए साहब। जितना हीरा मोती सोना चांदी यहाँ पे है, कहीं और है ही नहीं दुनिया में। और फिर साहब वो बीच में हमारे मंदिर बैंक्स जैसे काम करना शुरू हो गए। इतिहास बताता है कि उन्होंने मर्चेंट्स को लोन देने शुरू किए, ये दे, वो व्यवसाय में ज्यादा पड़ गए। और तब से हमारे हिंदू धर्म का आप समझिए पतन शुरू हुआ। हमको उस वक्त बचाया तो आदि शंकराचार्य ने, ठीक है। 32 साल की उम्र में उसने पूरा भारतवर्ष घूम लिया था, शास्त्रार्थ किए थे और हमको वेदांत के मार्ग पे फिर वापस ले गए कि साहब ये छोड़ो, ये सब ये बाद में करते रहेंगे, आप वेदों के मार्ग पे जाइए, जो कि हमारी रूट्स हैं, जो कि हमारा ओरिजिनल कल्चर है। और उन्होंने ये आपको जो है ये 4 महावाक्य दिए और सारा वेदों के बारे में बताया। एक और बड़ी चीज खास जो हिंदुइज्म की है, शक्ति। हम सब में वो शक्ति है जो हमारे शरीर को बनाती है। जब मतलब देखिए, व्हेन इन द वूम देयर इज अ सिंगल फर्टिलाइज्ड सेल, ठीक है, उसमें वो शक्ति एंटर करती है और उसको वो जो फॉर्म है, उसको वो रूप और नाम रूप उसको वो देती है, और दे के वो फिर डॉर्मेंट हो जाती है। पूरा हमारा फॉर्म क्रिएट करके वो डॉर्मेंट हो जाती है। जैसे कि शेष नाग,
आपने सुना है विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटते हैं। शेषनाग क्या है? शेष मीन्स जो बचा हुआ, व्हाट इज लेफ्ट ओवर। ठीक है बच्चों, मतलब जो मेरे को बॉडी को क्रिएट करने के बाद जो वो शक्ति थी, क्रिएटिव एनर्जी, वो वहां लेटेंट हो गई 2.5 कॉइल्स के अंदर। उसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है एट द बेस ऑफ द स्पाइन। और कुंडलिनी शक्ति को देखें, वो 2 सांप जो है ऐसे ऐसे जा रहे हैं, वही शक्ल है डीएनए की। राइट साइड पे डीएनए का हेलिकल स्पाइरल है। और अब जो रिसर्चेज हो रही हैं वो बता रही हैं कि जब हम में एवोल्यूशन होती है, तो ये देखिए, ये राइट साइड में वो है डीएनए डबल हेलिक्स, वो है आरएनए सिंगल स्ट्रैंड। और ये स्ट्रैंड जो हमारे शुक्राणु कोश हैं, वहां से ये जाके जब हमारे ब्रेन्स में आ जाते हैं तो वहां पे एंडोर्फिन्स और एंकेफालिन्स जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स पैदा होते हैं, जिससे हमारी बुद्धि का अद्भुत विस्तार होता है। तो जो हमारे वेदास कह रहे थे वो आज साइंस आपको प्रूव करके बता रही। और ये 9-10 हजार साल पहले की बात है। लेकिन साहब देखिए, जब हम मटीरियलिस्टिक हो गए, फिर एक जमाना था कि यहां चाड़वाक जैसे लोग आ गए। वो कहते हैं साहब हम तो धर्म मानते ही नहीं, हम तो आत्मा शात्मा कुछ नहीं मानते, जो कुछ है यही है, खाओ पियो आनंद करो, दारू पियो। और ये भी चाड़वाक भी आए थे हमारे पास। और तब हमारे धर्म का पतन हुआ। और जब पतन हुआ तो फिर बाहर के आताताई आक्रांता एक के बाद एक हमारे पे हमला शुरू हो गया। ये हमला 7वीं सदी में शुरू हुआ था बच्चों। 7वीं सदी में सबसे पहला हमला इराकी फौजों ने अफगानिस्तान पे किया था। और अफगानिस्तान में तब एक जो है हिंदू शाही डायनेस्टी थी और एक रुतबिल डायनेस्टी। काबुल में हिंदू शाही और रुतबिल में जो राजपूत थे वहां के, वो 2 राज्य थे अफगानिस्तान में। गंधारी कहां से आई? अफगानिस्तान से। ठीक है। और मामा शाकुनी कहां के थे? वो अफगानिस्तान के थे। सबसे बड़ा बेस्टियन हमारा वो था। 300 वर्ष इराक की फौजों ने हमले पे हमला किया, वो लोग नहीं तोड़ पाए इसको। पहला शिकस्त जो मिला उस टाइम की जो जिहाद की जो फोर्सेस थे, उनको अफगानिस्तान भारतवर्ष में मिला। फिर उन्होंने समुद्र के रास्ते, जो मीर कासिम था वो सिंध के रास्ते आया और थोड़ी पेनिट्रेशन करी, बट उसको भी रोक दिया गया। असली पतन हमारा हुआ 10वीं सदी में, जब अफगानिस्तान में पूरा धर्म परिवर्तन हो गया। तब महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी एक के बाद एक, उन्होंने इतना सुना था यहाँ पे है मंदिर, वो मंदिरों को आके लूट लिया। और जब मंदिर को लूट रहे थे तो वहां के क्षत्रियों ने बोला साहब हम लड़ेंगे, तो वहां के पंडों ने बोला नहीं साहब कोई जरूरत नहीं है, वो तो देवी उठेगी। देवी नहीं उठेगी अगर आप अपना पुरुषार्थ नहीं करोगे। ठीक है साहब, देयर आर रूल्स हैं, सृष्टि के नियम है। और वो लड़े नहीं और वो कट के मरे, आपस में लड़ते रहे ये लोग, कट के मरे, लूट के ले गए आपका सारा सोना चांदी। कहां पे है सोने की चिड़िया? कहां है तुम्हारा सोना? अफगानिस्तान में, सामरकंद और बुखारा में है, जाके देखो, वहां अभी भी दिखाते हैं, ये देखो साहब ये वहां से आया था सोना। क्योंकि आप रक्षा नहीं कर सके, आपने मिलिट्री टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया, आप हाथियों से लड़ते रहे उस युग में जबकि तोपें और बारूद आ गया था, और बारूद के फटने से हाथी पागल हो जाता और अपनी ही फौजों को रौंदता। यू रिफ्यूज टू चेंज, तो फिर खाओगे मार। और साहब आप देखिए, वो कहते हैं ज्यूइश होलोकास्ट, 6 मिलियन ज्यूज वर किल्ड बाय हिटलर। और आज तक वो साहब उसका आपको बताते हैं, होलोकास्ट म्यूजियम है वहां पे। आप जानते हैं 10वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक आपके कितने लोग मारे गए? ओवर 100 मिलियन वर स्लॉटर्ड, women were raped, carried off and sold into slavery। ठीक है साहब। और उसके बाद हमको पाठ पढ़ाया जाता है अहिंसा परमो धर्म। ये सीखा तुमने, ये सीखा तुमने अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से? कम से कम ये तो आता कि जैसे आप ज्यूज को देखो, जरा हाथ लगा के देखो क्या हाल कर दिया अपने आसपास।
वो तो उस तरफ चले गए हैं, मोर देन दैट। लेकिन साहब ये हमारा हिंदू होलोकास्ट था, ये अफगानिस्तान के पहले तो रेड्स आए, फिर तुर्की की इन्वेजन आई, और जो वो यहाँ पे सेटल हो गए, बोले साहब यहाँ तो राज करना बड़ा आसान है। तुर्क, मंगोल, मुगल, मुगल कौन है? उज्बेकिस्तान के, ठीक है। और हिंदू स्टेट और आर्मीज का पतन हो गया, 100 मिलियन हिंदूज वर पेरिश्ड। ये जब अकबर आया उसने एक सेक्युलर कंसेंसस किया, हिंदूज को उनके साथ शादियां शुरू करी और अपनी सरकार में लेना शुरू किया। लेकिन एक ऐतिहासिक सवाल पूछा जाता, इजिप्ट when it was conquered by the jihadi armies, एक बंदा ओरिजिनल धर्म का नहीं रहा। मेसोपोटामिया, एक बंदा ओरिजिनल धर्म का नहीं रहा। पर्शिया, एक बंदा वो पुराने धर्म का नहीं रहा। सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, सब जगह 100% परिवर्तन हुआ। तकरीबन 350-400 साल यहां पे राज किया बाहरी फॉरेन आर्मीज ने, लेकिन 80% हम लोग अभी भी हिंदू हैं। अमेजिंग फैक्ट, इट हैज नॉट हैपेंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। सो हाउ डिड इट हैपन? नंबर 1 वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ। इतनी गहराई है भारत में कि जब वो नॉर्थ में रूल कर रहे थे, चोलास साउथ में रूल कर रहे थे, मंदिर बना रहे थे, साउथ ईस्ट एशिया में जाके धर्म परिवर्तन कर रहे थे, लोगों को वहां भी मंदिर बना के आए, ठीक है। विजयनगर एम्पायर 200 साल तक लड़ी वो लास्ट में, तो पूरे को वो इकट्ठा कभी कर ही नहीं पाए। और फिर हमारा जब सब कुछ चला गया तो पता हमको किसने बचाया? धर्म जाति की जो पंचायत थी ना, खप पंचायत, हर गांव में उन्होंने जाके हमको बचाव किया, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। उनने सिर्फ इतना बोला कि जो परिवर्तन करेगा, धर्म परिवर्तन करेगा साहब, रोटी बेटी का रिश्ता बंद, एक्सकम्युनिकेट। और आप जानते हैं उससे हम बच गए। अब प्रॉब्लम यह है कि अब साहब, अब हमको जाति खप पंचायत और कास्ट की जरूरत नहीं, अब हमारी फौज है, अब हमारी सरकार है। दैट वॉज व्हेन यू हैड लॉस्ट योर स्टेट, लॉस्ट योर आर्मी। लेकिन अभी भी वो जो चीज चली आ रही है वो हमें प्रॉब्लम कर रही है। मैंने आपको कहा था बच्चों कि हमारे धर्म में कुछ है कि जब भी हमारी ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, जब भी हमारा बुरा हाल हुआ है, ऐसी चेतनाएं इस देश में आई हैं जिन्होंने हमको फिर से जिंदा किया, ठीक है। वो काट रहे थे ब्राह्मणों को, वेदों को जला रहे थे, तो उस टाइम पे भारत में एक भक्ति मूवमेंट का रिवाइवल हुआ कि ठीक है साहब, आपने मंदिर तोड़ दिए, हर घर में एक पूजा रूम बना देंगे। आप समझे? हर घर में एक पूजा रूम बनाया और अपना फेथ नहीं छोड़ा, उसको जिंदा रखा बेटा। बहुत ये पते की चीज है। और संत कबीर, मीराबाई, ज्ञानदेव, गुरु नानक देव महाराज, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, और अपने जो हैं कितने सैकड़ों अनगिनत हमारे अलवार्स दक्षिण भारत में, ठीक है, ये लोग आए, कालिदास, तुलसीदास, इन लोगों ने हमारे धर्म को फिर से जिंदा किया। कैसे? बाय री एक्सपीरियंसिंग द ट्रूथ एंड एक्सप्रेसिंग इट इन द लोकल लैंग्वेज, नॉट इन संस्कृत बट इन लोकल लैंग्वेज। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कबीर के कुछ दोहे जो मेरे बड़े पसंद है। जरा बेटा ध्यान से इसका केडेंस स्पीच सुनो। हाँ, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, बस जाग सके तो जाग। अब समझ रहे हैं बच्चे? जैसे कि तिल में तेल है जो हम निचोड़ के पीते हैं, वो तेल उस तिल के अंदर है। चकमक में आग, पुराने जमाने में 2 पत्थर लेते थे, उनको चकमक पत्थर बोलते थे, और ऐसे ऐसे करके चिंगारी निकलती थी, उससे घर का चूल्हा जलता था, माचिस नहीं थी, ठीक है। तो ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरे अंदर है वो आत्मन, ठीक है, तेरा साईं तुझ में है, बस जाग सके तो जाग। तू उसको जगा सकता है, जान सकता है तो जान ले, ठीक है।
सुमिरन सुरत लगाई के मुख से कछो न बोल, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। सुमिरन सुरत लगाई के मीन मेडिटेट, ध्यान लगाओ भगवान पे, ठीक है। मुंह से कुछ मत बोलो, शांत बैठो, चुप रहना बैठना सीखो, मौन सीखो। बाहर का पट बंद कर, बाहर की जो एक्सटर्नल इंप्रेशंस हैं उनको बंद कर, अंदर का पट खोल, एंड यू विल सी द लॉर्ड। या इधर है, कहीं मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं, कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, वो सब आपके यहाँ इधर पे है बेटा। हाँ, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोहे, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। देखो बेटा, ये कितने सिंपल वर्ड्स में कितनी प्रोफाउंड विजडम और ये रिदमिक स्पीच और पोएट्री में उन्होंने डाल दी बेटा। लेकिन बेटा 17वीं सदी में जब औरंगजेब की जो परसिक्यूशन थी वो हदें पार कर गई, उसने, मेरी अपनी फैमिली में भाई माटीदास हैं, उसको सिर से पांव तक जिंदा चीरा गया आरी से, ठीक है। उसके भाई को जो है जलती वो देगची में उबलते तेल में डाल के उसको मारा गया। तीसरे को लपेटा, जैसे कि हम दिया जलाते हैं उस तरह उसको टॉर्च कर दिया गया, चीख चीख के मारे वो। लेकिन उन्होंने अपना ईमान धर्म चेंज करने से बिल्कुल साफ मना किया, इतना टॉर्चर किया। लेकिन साहब जब इतना टॉर्चर हुआ तो फिर हिंद की जो सोती शक्ति थी वो उठी। उत्तरी भारत में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ का स्थापना करी, और दक्षिण भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने वहां पे रिवोल्ट किया, और पूर्व भारत में जनरल लचित बुरपुखान। और 100 वर्ष के अंदर इन्होंने वो जो मुगल साम्राज्य था यहाँ पे, उज़्बेक साम्राज्य, उसको उखाड़ फेंका। जो लोगों को आरी से काटते थे और डराने की कोशिश करते थे वो डरे नहीं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, न डराओ अड़िसाओ जब जाए लड़ो, निश्चय कर मन में जीत करो। ये स्फूर्ति की आवाज जब आई तो पुरजा पुरजा वो कहते हैं जाग गए लोग, और उखाड़ फेंका उन आक्रांताओं को। 100 वर्ष में मुगल साम्राज्य खलास, खत्म किया। अंग्रेजों ने नहीं छुड़वाया हमको। जो कटे दीन के हेत पुरजा पुरजा, पुरजा पुरजा कट मरे, कबऊ न छाड़े खेत पुरजा पुरजा। ये सब बेटा पोएट्री है, याद हो जाती है, नस में चलनी शुरू हो जाती है, और इससे प्रेरित होकर लोगों ने काट मारे ये आक्रांता। हमको अंग्रेज आके नहीं छुड़ाया इनसे, हमने काट मारा। और यही होना था हर्ष अंग्रेजों का भी। लेकिन हमको गांधी जी अगर वो शांति का पाठ नहीं पढ़ा गए होते तो शायद इतिहास दूसरा होता। बेटा ना सिर्फ हमने मुगल साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक दिया, महाराजा रंजीत सिंह की फौजों ने, जो आज पूरा वेस्ट पाकिस्तान है, उस पे कब्जा कर लिया बेटा। उसके बाद वो अफगानिस्तान पे चढ़ गए। जलालाबाद में गवर्नर कौन था? हरी सिंह नलवा। आज भी पठान औरतें अपने बच्चों को जब वो सोते नहीं है तो बोलते हैं हश नलवा आया, नलवा आया। इतना मतलब जो हमें आके लूटपाट कर रहे थे, हमें आक्रांता वो पीड़ित कर रहे थे, उन पे चढ़ गए जाके, ठीक है। और फिर हमारे एक थे जनरल जोरावर सिंह, जनरल गुलाब सिंह, इन्होंने जाके लद्दाख पे फतह करी, इन्होंने जाके गिलगिट बाल्टिस्तान पे फतह करी। और क्या आप जानते हैं 1841 में जनरल जोरावर सिंह ने जाके कैलाश मानसरोवर पे फतह की, जो कि हमारे धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। अफसोस की बात यह है कि पिछले 5 सालों से चीन की सरकार ने हमारे जो तीर्थयात्री जाते थे उनको जाना बंद कर दिया। और मैं तो आह्वान दूंगा, अगर ऐसे ही हाल चलता रहा तो आप लोग जाके, जैसे जोरावर सिंह ने वापस छीन लिया था,
वैसे छीन ले उसको। बेटा जब तक मुगल थे हमें इकट्ठे होने का एक रीजन था। जब मुगल सरकार को उखाड़ दिया तो हम लोग अपने वापसी आपसी फूट पे आ गए। मराठे जो थे जिन्होंने 3/4 भारत पे फतह कर ली थी, हिंदू पातशाही शुरू की थी, वो आपस में लड़ने लगे। 5 बन गए, गायकवाड़ और पेशवा और होलकर वगैरह वगैरह, और वो लड़ने लगे सिखों से, वो लड़ने लगे इनके साथ। और इस फूट का पूरा फायदा उठाया अंग्रेजों ने। हिंदुस्तानी सिपाही रिक्रूट किए अंग्रेजों ने। अगर उन्होंने भारत पे फतेह की तो हमारे सिपाहियों के हाथ उनको साथ लेके फतेह करी, ठीक है। और जो है बड़ा हमको बताया जाता है कि साहब अंग्रेजों ने तो हमको इमेंसिपेट कर दिया। मैं आपको थोड़े से फैक्ट बताना चाहता हूं। 48 ट्रिलियन डॉलर्स, अब समझ रहे हैं आंकड़ा क्या है। 48 ट्रिलियन डॉलर्स की जो संपत्ति थी वो यहां से लूट के ले गए इंग्लैंड, और अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उन्होंने हमारे पैसे से शुरू करी, लूट के। वहां पे एक इतिहासकार है अंग्रेज इयान कोपलैंड, और वो कहता है कि 1769 और 1943 के बीच अंग्रेजों ने हमको मारने का एक बड़ा नया तरीका चुना, भूखमरी, त्राहिमाम कर दो। 11 फैमिन्स हुई थी बेटा, 11 फैमिन्स। और आप जानते हैं कि अंग्रेज कह गए, असली में ज्यादा होंगे, कि 63 मिलियन से लेके 80 मिलियन, 80 करोड़ तक भारतीय उन्होंने भूख से मार दिया। क्या आदेश दिया? कोई अन्न अनाज नहीं उगाएगा, सब अफीम उगाएंगे। ये अफीम हम चीनियों को बेचेंगे, हम चीनियों को ये अफीम बेचेंगे, ठीक है साहब। और खाएंगे क्या? तुम्हारा सर। उस तरह बेटा लोग भूख से तड़प तड़प के मरे। आखिरी फैमिन हुई थी वेस्ट बंगाल में, और उसमें 3.5 मिलियन इंडियंस डाइड। कलकत्ता की आप देखें, गलियों के अंदर लोग आके मर रहे थे पूरे वहां से। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने सारी जो बोट्स थी जो रिवर्स में जाती थी उनको जला दिया था कि जापानी इसका इस्तेमाल ना करें हमले के लिए। इन्होंने हमारे कोई 80 करोड़ भारतीय मार के गए हैं साहब, भूखमरी से। लड़के नहीं मारा, भूखमरी से मारा है इन्होंने, ठीक है साहब। और जो है मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन्होंने हमको सबसे ज्यादा नुकसान किया, मुगलों से ज्यादा, मंगोलों से ज्यादा। इन्होंने दी आइडिया ऑफ इंडिया खत्म करने की कोशिश करी, भारत को मिटाने की कोशिश कर दी बेटा इन लोगों ने। और सबसे ज्यादा हमने ये सफर किया है। एक डॉक्टर मिठी मुखर्जी हैं, बहुत बड़ी स्कॉलर, वो कहती हैं द ब्रिटिश एम्पायर वाज टू सर्वाइव इन इंडिया, इट हैड टू डिस्ट्रॉय एंड डिसमेंटल all sources of Indian unity and identity, cultural, political and historical, and render the very idea of India as meaningless. उन्होंने कहा कि इनमें सारी जो यूनिटी है वो तोड़ दो। तो उसका उन्होंने क्या तरीका उठाया साहब? उनको हमें हीन भावना भरी कि तुम गंदे लोग हो, बेकार लोग हो, तुम फीमेल इन्फेंटिसाइड करते हो, तुम सती करते हो। अरे क्यों करते हैं? हम पे थोपा गया था। जब ये मुगलों का, उज़्बेक्स का, अफगानों का राज था तो लोग अपनी बेटियां बचाते फिरते थे कि जल्दी शादी कर दो साहब, मेरे नाम पे ना पड़े। और बेटी हुई तो उसको खत्म कर दो, बेचारी का क्या हाल होगा। ये हम पे थोपा गया था। हमारी सभ्यता में हमारी ऋषि कन्या, they were as educated as anybody else। कभी यहां पर्दा पुर्दा कुछ ये सब बकवास नहीं था, ये सब हम पे थोपा गया था। और फिर हमको उसके ग्लानी भरी गई, अरे साहब ये इंडियंस तो सती करते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड करते हैं, इत्यादि इत्यादि। और उस वक्त एक हीनता की भावना भरी भारतवर्ष में कि सब कुछ देशी बेकार। देसी शब्द का मतलब ही बेकार, यूजलेस। और विलायती, वाह साहब ये कार विलायती है तो बड़ी अच्छी है। विलायती मेंट गुड और एनीथिंग देशी मेंट यूजलेस। तो उस वक्त साहब फिर हमारे जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कई प्रतिभाएं फिर जन्म लिया इस देश में।
जिनमें मुख्यतर मैं मानता हूं रामकृष्ण परमहंस बंगाल के। अपने जीवन में इन्होंने वही अनुभव किए, वही ब्रह्म का अनुभव किया, और ये तो बड़ी अद्भुत चीज हुई थी। उन्होंने पहले तांत्रिक, उनकी गुरु थी, उनसे भैरवी ब्राह्मणी, उनसे उन्होंने शक्ति की साधना करी और उनको वही चैतन्य के सागर के अनुभव हुए। सच्चेतानंद, ये सत्य है, ये चैतन्य है और ये आनंद से भरा हुआ है। दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ ब्रह्म, ही हैड दैट। फिर वो उन्होंने वेदांती तरीके से किया, वही एक्सपीरियंस हुआ। और फिर वो जो थे, उसके बाद इन्होंने एक मौलवी के पास जाके सूफी से वही एक्सपीरियंस करने की, भाई तुम्हारे में क्या फर्क है, एक्सपीरियंस एंड में वही हुआ। क्रिश्चियन पादरी के साथ गए, एक्सपीरियंस एंड में वही हुआ। कोई भी मार्ग लो, आपका आखिरी डेस्टिनेशन वही सच्चिदानंद, वही परब्रह्म है। ये इन्होंने करके दिखाया। इनके स्टूडेंट थे विवेकानंद परमहंस, जिन्होंने जान भरी। अगर आज लोग, आप भी और हम कुछ हिंदुइज्म के बारे में जानते हैं तो वो इनकी वजह से, इनकी पढ़ी हुई पुस्तकों की वजह से। और फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, और फिर आपके जो हैं वो महर्षि अरविंद और रमन महर्षि। हमारी फ्रीडम स्ट्रगल, मैंने जैसे बताया, 1857 में हमारा गुस्सा फूट पड़ा। तो फिर अंग्रेजों ने कहा कि पहले हिंदू, सिख, ईसाई और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के अलग इलेक्टोरेट होंगे। फिर उन्होंने कास्ट का सिस्टम निकाला और थोपा हम पे कास्ट। और हर्बर्ट रिस्ले ने कहा, एज लॉन्ग एज देयर इज कास्ट देयर विल बी नो इंडिया। कोई भारत नहीं होगा साहब जब तक कास्ट है हमारे पास। ये तोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। अफसोस की बात यह है कि ये जो है अभी तक चल रहा है। जब हम आजाद हो गए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ जो रिवाइवलिस्ट थे, ये हैं महर्षि महेश योगी, श्री श्री रविशंकर, भक्तिपाद, वो हैं स्वामी मुक्तानंद परमहंस, और वो हैं नारायण संप्रदाय के स्वामी, और लास्ट में है मेरे अपने गुरु जो कि एक जंगल में रहे। और उन्होंने बताया कि आप अगर चाहते हैं अपना उद्धार, आपको वापस जंगलों में जाना होगा, और अगर जंगल में नहीं जा सकते तो हर गांव में एक वन प्लांट करो मियावाकी तरीके से, हर शहर में 10 करो, हर महानगर में 50 करो, लेकिन वहां शांति के लिए जाओ, केवल ध्यान मंदिर बनाओ, एक हॉल बनाओ और मौन रहो और सीखो, और सब तो जो हमारा धरोहर है आप पा जाओगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। मैं जरा देखना चाहता हूं कि यहाँ के बैठे बच्चों में कितना जोश है। आप थक गए हैं क्या? जरा देखें फिर कितना जोश है। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू। एनसीसी क्लैप शुरू कर। Thank you so much, sir, for your enlightening talk.